Question number 2.5. Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength lambda of 580 nanometer. Calculate the frequency and the wave number. We have to find out which one. Frequency, nu we have to find out, wave number, nu bar we have to find out, wavelength is given to us. So how to solve that one? And what is given to us? Lambda. So lambda equals to 580 nanometer. That means 580 into 10 to the power minus 9 meter. Okay. Frequency. Frequency means which one? Frequency nu equals to what you can write down here? C by lambda. So what is C here? 3 into 10 to the power 8 divided by what is lambda here? 580 into 10 to the power minus 9. So if I am dividing here 580, it is coming here 3. So it is coming 0.000 and again it is coming 100 here 0. Okay. So 5 5s are 500 29. So 001 again 0 is coming here. So it is coming 1. So 1 it is coming 580. So 0 2 and it is coming here 4 again 0. So 5 8s are 40. So it will be coming here 7. So 70 and 40. So now it is coming here. What is coming? 0.00517 into 10 to the power minus 9. When it is coming up means 10 to the power plus 9 to 10 to the power what is coming? 17. So if I am shifting the decimal right hand side, so 5.17 into what you can write down here. So if I am 3 point I am shifting here, or 3 digit I am shifting here. So here we have to, as I am shifting in right hand side, so here we have to deduct 3 from 17. That means it is coming 14. So this is actually the nu, or the we can say it is frequency. Okay. And now whenever you will be doing the calculation, no, you can do side by and put one space there and put the calculation. So now frequency is over, and next one what you have to find out here? Nu bar, that is called wave number. The formula all of you know, 1 by lambda. So what is lambda here? 1 by 580 into 10 to the power minus 9. So 1 by 580, that means it is coming 1 here. So 0.00000. So it is coming here again 2 to nahi jayega, to 1. So 580, it is 0, 2 and 4. Again 0 it is coming. So it is coming 8. To nahi jayega 7. So 7 again 0, 6 and 0, 4. So 0.0017 you can say, and then it is coming about also 6. It is coming 0, it is coming 4, it is coming 1. So 1400, that means it is coming here 17. Again it is coming 5 2s are 10. So 2. Okay. So what is the coming here? 0.00172 into 10 to the power minus 9 upar mein jayega to 10 to the power 9. Now if I am shifting here 3 digit, means after 1 digit decimal 1.72. So 1 2 3 numbers, so it is coming minus 3, that means 10 to the power 6 meter minus 1. So this is the value. Next one here coming, calculate the wavelength, frequency and wave number, है ना, of a light wave whose period is, period देके रखा है 2 into 10 to the power minus 10. So first of all, time period, it equals to what is coming here? 2 into 10 to the power minus 10. What is the meaning of time taken? Now time taken to complete one oscillation. ठीक है, तो one oscillation में कितना हुआ time taken? That is t. Okay. Now what is the meaning of frequency here? Frequency means number of oscillation per second. ठीक है, in 1 second. ठीक है, तो अगर इन 1 सेकेंड में मान लो n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर देयर, तो एक ऑसिलेशंस के लिए कितना चाहिए ना? 1 by n.
तो 1/n मतलब एक ऑसिलेशन की टाइम, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द टाइम पीरियड. ओके, सो दैट इज मीन्स टाइम पीरियड. सो कैन यू नॉट राइट डाउन नाउ t इक्वल्स टू 1/nu. न्यू का मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, दैट नंबर divided by that number. So what is given to us now? Time period is given to us. We have to find out which one frequency. So simple बात है, frequency equals to 1 by capital T. So 1 by capital means 1 by 2.0 into 10 to the power minus 10. That means what is coming here? 2 means 0.5. 1 by 2 means 0.5 into 10 to the power plus 10. That means 5 into 10 to the power 9 second inverse. Okay, so this is actually first one. Frequency is over. Then what we have to find out here? Lambda we have to find out here. So lambda equals to c by, we can say nu. So it is coming, c is which, what here, 3 into 10 to the power 8 divided by 5 into 10 to the power 9. So what will be coming here? 0.6 into 5 6 are 30 means 0.6, and it is coming upper means 10 to the power minus 1. So 6 into 6 अगर पॉइंट आप इधर करोगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि आप राइट हैंड साइड डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो तो इधर -1 हो जाएगा. तो -2 क्या हो जाएगा इधर, मीटर. ये तो हो गया आपके वेव लेंथ, है ना. इसके बाद नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग अबाउट विच वन, ना वेव नंबर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर हेयर? वेव नंबर इक्वल्स टू, व्हाट यू कैन राइट डाउन हेयर, 1 by lambda. So it is coming about the 1 by 6 into 10 to the power -2, that is coming 16. 6 1 6 means 40, 6 is 36 point, I can 40 16.66, है ना. And it is coming about the, so it is 16.66, it is coming afterwards. So we put this coming 0.1666 into 10 to the power 2, that means it is coming 16.66 meter minus 1. Okay, so this is called, actually this is the wave, that is the wave number and frequency and wavelength we have found here. Okay, next one we are coming about, if the diameter of a carbon atom is a number 2.35 question number. So if the diameter of a carbon atom is 0.15 nanometer, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across the length of a scale of length 20 सेंटीमीटर. मान लो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन है जिसमें आपको कार्बन एटॉम को क्या करना है ना, प्लेस करना है. एंड डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम आपको बोल के रखा है, दिस डायमीटर इज 0.15 नैनोमीटर. सो हाउ मेनी कार्बन एटम कैन बी placed side by side? This is the question actually. Now we have to write down which one. So first we have to find out that the diameter, what is the diameter here? Diameter equals to diameter of which one? Carbon atom. Okay, equals to what you can write down here, diameter of carbon atom equals to 0.15, what is that, nanometer. That means what you can write down, 0.15 into 10 to the power -9 क्या है, मीटर. और we can write down 1.5 into 10 to the power -10 meter. Okay, now we are coming length. So what is the length here? Length of द लाइन, है ना. लेंथ ऑफ द लाइन कितना है ना, 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. क्योंकि ये मीटर में है तो इसको आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और वी कैन से हेयर 2 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर. ओके, तो ये तो आपके, सो 2 इंटू 10 टू पावर -1 मीटर. नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, क्या आ जाएगा ना. एक तो आपके लेंथ कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर -1 मीटर, और उसमें एक एक की कार्बन की रेडियस डायमीटर कितना है ना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -10. दैट मीन्स इट इज कमिंग 1.5. सो 1.5 और 2, दैट मीन्स इट इज कमिंग 20. और this one coming 1.15, that next is coming 50 पॉइंट दे दो आप तो 15 3 45,
So again 50, that is coming 3s are 45. That means it is coming 1.33 into 10 to the power क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 10 to the power 9. ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1.33 into 10 to the power 9. Okay, so this is the answer. So question number 2.42 exercise. An element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Okay, assign the atomic symbol. आपको atomic symbol find out करना है और एलिमेंट दे के रखा है, मास नंबर कितना है 81, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन. सो ठीक है, तो मास फर्स्ट वी आर राइटिंग हियर mass number equals to what is given here 81. That means proton plus neutron equals to 81. ठीक है, so if protons equals to x, तो न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, कितना परसेंटेज ज़्यादा है 31.7%. सो न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू x प्लस ये इससे 31.7% ज़्यादा. ठीक है, सो 31.7 बाई 100 इंटू एक्स, दैट इज 31.7% ऑफ x ज़्यादा है. दैट मीन्स x प्लस मतलब प्रोटोन, उससे इतना परसेंटेज ज़्यादा है न्यूट्रॉन. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस वन. दैट मीन्स व्हाट यू कैन से 100x प्लस 31.7x divided by 100. That means what is coming 131.7x by 100. That means we are coming here, it is coming 1.317x. ठीक है, now we are coming for नेक्स्ट. आपके मास नंबर कितना देके रखा है 81. सो मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. सो P प्लस N इक्वल्स टू 81. दैट मीन्स x, प्रोटॉन कितना है x प्लस 1.317x इक्वल्स टू 81. और वी कैन राइट डाउन 2.317x इक्वल्स टू 81 और x equals to 81 divided by 2.31. So if we are coming 2.317 81, so 0 0 0 point will be removed, so it is coming here 3. So 3 7s are 21, 3 1 are 3 and 2 5 and 3 3s are 9 and 3 3s are 6. So it is coming 9 4, it is coming 1, it is coming 1. Okay, so 1 1 4 9 0, so it is coming again 4 2s are 8, so 4 7s are 28, 2 4 1 2 6, and it is coming here 4 2s are 12, 1 4 2s are 8 1 9. Okay, it is coming again 2, it is coming 2, it is coming 2, and it is coming 2. Okay, then it is coming 0.0 and then 9 2s are 18. So 34.9 equals to, we can write down here 34.9 or 35. Clear? So now proton equals to which one? 35. So proton equals to 35. So atomic number equals to 35. And it is coming about the atomic mass. Mass number is given 81 here. So the symbol is 81, mass number x and 35. और x की जगह में कौन आएगा, किसकी 35 है, ब्रोमीन की. सो इट इज कमिंग 81 ब्रोमीन 35. ओके, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग एन आयन विथ मास नंबर 37 पॉजेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, ये आयन के बारे में बात कर रहे हैं.
जिसके पास 1 नेगेटिव चार्ज है। इफ द आयन कंटेंस 11.1%, आयन कंटेंस ये वाला चीज याद रखना, 11.1% more neutrons than the electrons, find the symbol of the ion. Okay, so first what you have to write down here, now suppose the number of एक नेगेटिव चार्ज मतलब -1, ये है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सपोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन, एक्स ना को इसको ए भी बोल सकते हैं, तो इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि हम एक्स ले रहे इधर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना परसेंटेज ज़्यादा है 11.1, सो एक्स प्लस 11.1 बाई 100 इंटू एक्स, दैट मीन्स इट इज कमिंग 100 प्लस 11.1 है ना, एक्स बाई 100, दैट इज कमिंग 1.111 एक्स। ओके, नाउ वी आर कमिंग फॉर 1.111x हो गया। अभी क्या हो जाएगा आपके पास ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें, न्यूट्रल एटम। देखो मैंने दो चीज़ अलग अलग लिखे हैं, ये आयन के बारे में बात किए हैं तो इसलिए एक्स ले लिया, क्योंकि आयन में ही 11.1% ज़्यादा था न्यूट्रॉन, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया ना 1.11x, ये क्या हो गया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बेसिस पे, आयन की बेसिस पे। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम क्या हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है इसलिए -1 चार्ज आ रहे, ये है आयन, बट एटम में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तब उसका आएगा क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए आएगा, तो एटम में क्या आ जाएगा, इसकी बात आएगा x-1। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जितना न्यूट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, x-1। ठीक है, तो मास नंबर क्या हो जाएगा, तो मास नंबर इक्वल्स टू x-1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना था ना, अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था ना x-1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना था 1.111x, है ना। न्यूट्रॉन तो चेंज नहीं होगा आयन में, किसकी चेंज होगा, आइदर प्रोटॉन का भी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की आइदर लूज होगा या तो गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहे हैं आयन में, तो न्यूट्रल कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, सो दैट इज एक्चुअली न्यूट्रल एटम में क्या हो जाएगा ना, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई एटम लिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा आ गए, मान लो 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आयन में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो लेकिन एटम में क्या हो जाएगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, क्योंकि आयन में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए थे, तो एटम में प्रोटॉन क्या आएगा, 2, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। ठीक है, तो x-1 प्लस 1.11x ये हो गया मास नंबर, दैट इज इक्वल्स टू कितना है, मास नंबर क्या देके रखा है ना 37। ठीक है, so this one equals to 37, so it is coming about the 2.11x, ये x था, ये x है, तो 1.11x प्लस 1 that is coming 2.11x, 1x इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 37 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 38। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 38/2.111। सो अगर डिवाइड करें 38 को 2.111 से 38 को डिवाइड कर दो, तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, तो हम 30 पहले से बिठा देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं इधर, तो एक हो गया 2111, इट इज़ कमिंग 9, इट इज़ कमिंग 8, इट इज़ कमिंग 7, 7 is 6 एंड इट इज़ कमिंग 1, सो 1689। ठीक है, तो 1689 इससे कम हो रहा है 0। ठीक है, तो अभी किस में आ जाएगा ना 18 में आ जाएगा, 8 2 16, तो इट इज़ हमें 8 8 8 और 16, तो हो गया 2, तो डेफिनेटली 18 के बाद क्या आ जाएगा 0 0 0, तो बहुत सारे 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 18। तो
तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 18, है ना। तो ये हो गया x का मतलब क्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन। तो एटॉम में क्या आ जाएगा, तो एटॉम में इन एटॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, इधर आप इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 18 माइनस 1 दैट इज कमिंग 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा वही 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। तो अभी इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, फिर ऑलरेडी मास नंबर हमें पता था 37, तो 37 Cl17, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, ठीक है। ओके, वन मोर इज देयर, एन आयन विथ मास नंबर 56। देखो मास नंबर देके रखा है, कॉन्टेंट्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पहले वाला जो डिस्कस किए थे नेगेटिव चार्ज वाला, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इन द सिंबल ऑफ दिस आयन, यहाँ पे भी सिंबल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है ना, यहाँ पे सिंबल हम क्या लिखना है M3+। देखो जो एटॉम आयन है उसकी सिंबल हम क्या लिखेंगे M3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, जो एटॉम में क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के कारण यहाँ पे 3+ आए, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, सपोज क्या लिखेंगे, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन आयन, देखो बार बार वही चीज़ मैं बता रही हूँ, इन आयन, आयन में बता रही हूँ, इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे x। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएगा इन आयन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा, कितने परसेंटेज ज़्यादा है 30.4, तो क्या लिखना चाहिए हमें ना, x प्लस 30.4/100, है ना, इंटू x, दैट मीन्स इट इज कमिंग x प्लस 0.304x, दैट मीन्स 1.304x, ठीक है, हो गया। ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस में है, आयंस में है। तो अभी नाउ आई एम राइटिंग नंबर ऑफ, मैंने पहले क्यों न्यूट्रॉन निकाला, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होगा, चेंज किसका होगा ना, इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, प्रोटॉन भी वही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे प्रोटॉन आएगा। तो नंबर ऑफ क्या लिखेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटॉम, है ना, क्या आ जाएगा ना, +3 चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अगर रहते तो क्या हो जाता ना, x प्लस 3, ये हो गया न्यूट्रल जो एटॉम उसकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो x प्लस 3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितना उतना ही प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा इक्वल्स टू x प्लस 3। तो मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास नंबर, मास नंबर कितना देके रखा है 56, तो 56, है ना। तो 56 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे ना, x प्लस 3 क्या है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की नंबर क्या है ना 1.304x इक्वल्स टू 56, और हम लिख सकते हैं 1.32 क्यों आएगा, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 1.304x, तो 2.304x इक्वल्स टू 56, इधर 3 प्लस में इधर तो माइनस हो जाएगा, इट इज कमिंग 53। तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 53/2.304, तो इधर 2.304 एंड इसके 53 से आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 30 लाएगा, इधर 2 है ना, 2 में कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो इसके आ जाएगा 2 then 9 एंड इधर क्या आ जाएगा ना 6, तो 6 9 2 और इधर 0, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो 3 4 ज़ा 12, 1 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, तो इधर 8 हो गया। तो पॉइंट अभी क्या आ जाएगा फिर 0 0 0, बहुत सारा 0 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 23। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ना, x प्लस 3 दैट इज 23 प्लस 3 दैट इज, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आप जो x जो है ये किस में था, आयन में था, ठीक है, और ये आयन में था, लेकिन आपको एटॉम के हिसाब से निकालना है, तो एटॉम में क्या था x प्लस 3 कंडीशन, ये निकाला था मैंने x प्लस 3, तो 23 प्लस 3 दैट इज 26। तो अभी क्या हो जाएगा ना, सिंबल क्या हो जाएगा 56 मास नंबर, फिर 26 किस है आयरन का, तो आयरन एंड इट इज कमिंग 26, ठीक है, और सिंबल क्या आ जाएगा इधर 3+, ओके।